Hello everybody, I welcome all of you in the press meet of Shamdani Industries Limited. Friends, this is the SME IPO. The IPO is proposed to be listed on NSE Emerge platform. The IPO will open for subscription on 22nd of December this month and closes on 24th of December this month. The anchor bidding for this IPO will start on 19th and will close on the same day. In this IPO, the company is offering 54,98,000 equity shares, and the price band of this IPO has been fixed between 65 to 70 rupees per equity share. The bidding lot is 2,000 equity share for every application. The total issue size at upper price band will be 38.49 crores. In this IPO, company is diluting 26.5% of the equity for the public, which is comprising of the market maker and the 1.5% and public 25%. Before starting the IPO journey, company has also initiated a private placement of 2,86,000 equity shares before filing the RHP. That allotment was done also at 70 rupees price only. So overall dilution in this IPO fundraise will be 28%, and after the IPO promoter holding will be down to 72%. The total fundraise including the pre-IPO and this IPO will be 40.5 crores. Now friends, the total amount which the company plans to raise from this IPO will be around 40.5 crore and it will be utilized in the following manner. First is for increasing the business of the company will requiring working capital. So they have allocated 13.26 crores for meeting the enhanced working capital requirements of the company. Second objective of the company will be reducing the debt of the company. The company is planning to repay 10 crores of the CC limit by utilizing the IPO proceeds. The third initiative the company will do with this IPO proceeds is to take a branding and marketing exercise to increase the brand sham to a much larger national level, for which they have already hired a brand ambassador, Ms. Priti Zinta, in this company. The proceeds will be used for creating the marketing material which will be displayed on the TV, national channels, print media, social media, Instagram, etc. to increase the brand of the company. The fourth one will be to purchase certain machinery to enhance the existing quality of the products of the company. They will shell out 1.60 crores for this. And the last will be the installation of solar system in our company. The company has already 200 kilowatt solar system installed in their company. To further bring down the electricity cost, they are additionally planning to inbuild 200 kilowatt additional system in this company. After the installation of this system, the electricity cost will come down to very minimum in this company. So these are the objectives and the issue details. Now I will take you through about the brief introduction and details of the company so that you can know more about the company. A quick update about the company. The company was incorporated in 2010 only. Since then, company is doing business on a regular basis. As of now, company has a business presence in terms of selling of the products in 20 Indian states. They have also presence in 5 international countries where they have exported the goods. The company has, as of now, 164 type of products which are mostly displayed on the back of this hall. The packing size of these products will be 5 gram to 25 kgs. So this helps the consumers who wants to buy in different nomenclature
according to their requirement. They can buy 10 gram, 20 gram, 50 gram, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 55 kg. So they cater to most of the type of consumers. Company has 4 type of products. One is the blended spices, one is ground spices, one is whole spices, one is grocery products. I will touch on these matters after this slide. And they are selling their products in various ways. They have generally 7 revenue generating channels. In March 25, the company was able to generate a revenue of 125 crores and able to generate a profit of 8 crores, resulting to a 6.5% and 6.5% profitability margin, which is pretty high in this industry. फ्रेंड्स, कंपनी को प्रमोट करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. सो कंपनी के तीनों जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब पूरी फैमिली बिजनेस में आ चुकी है. कंपनी सेटअप करी रामोतर अग्रवाल जी ने. उनकी वाइफ उनका पूरा हेल्प करती है बाय गिविंग द फॉर्मूला फॉर मिक्सिंग ऑफ द स्पाइसेस टू क्रिएट अ ब्लेंडेड स्पाइसेस. सो एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर. विठल अग्रवाल जो प्रमोटर के सन है, he will look after the marketing. So entire family is into this business and doing wonders. In addition, कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गाइड करते हैं. नाउ कम्स द प्रोडक्ट पार्ट. कंपनी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है. मेजरली ग्राउंड स्पाइसेस हो गए, जिसे अपन बोलते हैं मिर्ची, धनिया, टर्मरिक, कोरिएंडर, इस तरह के प्रोडक्ट्स जिसको ये पैकिंग करके बेचते हैं, लूज फॉर्म में नहीं बेचते हैं. सेकेंड इज ब्लेंडेड स्पाइसेस, पाव भाजी मसाला, किचन मसाला टाइप, जहाँ पर यूज करते हैं सीजनिंग्स, ओरिगेनो टाइप, होल स्पाइसेस, इलायची, cumin seeds, etc. Then also the company sells grocery products like poha, makhana types. So every type of requirement of the consumers are catered by the company. So 164 प्रकार के items they are selling on their products. कंपनी का इन चारों ही सेगमेंट के अंदर बिजनेस ईयर टू ईयर बेसिस बढ़ता जा रहा है. आप देखेंगे 2023 से लेकर सितंबर 25 तक हर साल कंपनी ने ग्रोथ करी है, चाहे ग्राउंड स्पाइसेस हो चाहे ब्लेंडेड स्पाइसेस हो. नॉट ओनली इन द प्राइसिंग टर्म कंपनी ने ग्रो करी है वॉल्यूम वाइज, प्लस वैल्यू वाइज भी ग्रो करा है. अब कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बेचती कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात. कंपनी का पूरा प्रोडक्शन राजस्थान जयपुर के अंदर ही सिचुएटेड है. कंपनी की मेजर सेल्स राजस्थान है, जाहिर सी बात है. उसके बाद दिल्ली NCR के अंदर है, पंजाब में है और मेजरली नॉर्थ इंडिया में है. कंपनी की प्रेजेंस साउथ वगैरह में भी है, बट इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट मेजरली इनटू द नॉर्थन पार्ट. बट विद दिस IPO कंपनी प्लान्स है कि अपने पूरे ऑपरेशंस को ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाए. इसके लिए कंपनी ने एक और लैंड परचेज किया है अपने फैक्ट्री के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पे इस IPO के बाद काम चालू होगा. अब आते हैं रेवेन्यू मॉडल्स कैसे बेचते हैं. मेजरली कंपनी की सेल होती है जनरल ट्रेड के अंदर, जहाँ किराने दुकानें होती है, जहाँ अपने घरों के पास होती है, जहाँ पे सभी प्रकार का राशन मिलता है, तो वहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. कंपनी ने ये चालू इसी धंधे से किया था, इसी मॉडल से, बट धीरे धीरे 2023 से अपनी पॉलिसी को चेंज और करा, जहाँ पे किराना पे तो फोकस रखा ही, साथ के साथ मॉडर्न ट्रेड के अंदर अपना फोकस को बढ़ा दिया. तो मॉडर्न ट्रेड कंपनी का बढ़ने लगा. मॉडर्न ट्रेड से मेरा कहने का अर्थ होता है ये जो सुपर मार्ट्स को सेल होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी के बिकते हैं, डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, इन बड़े प्लेटफॉर्म्स पे. सो 2023 के अंदर कंपनी की मॉडर्न ट्रेड के 30 लाख की सेल थी, वो 2025 आते आते 55 करोड़ की सेल पहुंच चुकी है. जो जनरल ट्रेड की सेल थी कंपनी की, वो 63 करोड़ थी 2023 में, और 25 आते आते भी 65 करोड़ रही. तो मुझे कंपनी ने उसको मेंटेन करके रखा है और अपनी प्रेजेंस को मॉडर्न ट्रेड में बढ़ा दिया है. सो दैट कंपनी के बिजनेस भी बहुत ग्रोथ करे पिछले 3 सालों में. इन दोनों के अलावा कंपनी के जो नए मॉडल्स हैं, जो नया रेवेन्यू मॉडल है आजकल क्विक कॉमर्स का, जहाँ आप 10 मिनट ऑर्डर करते हैं स्विगी से, ब्लिंकिट से, आपके घर पे आ जाता है,
तो कंपनी ने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारे प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करा रखा है और सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो कंपनी वहाँ से भी अपनी सेल कर रही है। कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर रही है। कंपनी ने रिसेंटली अभी यूएस एफडीए का अप्रूवल लिया है जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट अप्रूव हो गए हैं। चाइना में एक्सपोर्ट करने के लिए जीसीसी का लाइसेंस लगता है, वो कंपनी ने ले लिया है। मिडिल ईस्ट में तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर ही रहे थे, सो मिडिल ईस्ट तो कंटिन्यू रहेगा, प्लस 2 नई कंट्रीज ऐड करेगी कंपनी नियर फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा कंपनी प्राइवेट लेबलिंग करती है, दूसरी ब्रांड्स के मसाले पैक करते हैं, प्लस कंपनी की खुद की वेल डेवलप्ड वेबसाइट है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट करे हुए हैं। आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, बाय कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ 94% ऑफ द सेल इज इनटू द जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड, 6% ये बाकी प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको बताया। कंपनी की प्रोडक्ट्स known for quality and healthiness। इनफैक्ट नॉर्थ के अंदर आप देखेंगे डीमार्ट की, अगर इकलौती डीमार्ट की सेल देखेंगे तो ऑन एवरेज डेली में 50,000 डब्बे कंपनी बेचती है डीमार्ट के प्लेटफॉर्म से। तो कंपनी वहाँ पे शेल्स लेती है, उसके जो स्टोर होता है उस स्टोर्स पे देते हैं और वहाँ से सेलिंग होती है। सो कंपनी के प्रोडक्ट बहुत फेमस है डीमार्ट वाले कंज्यूमर्स के अंदर, तो वहाँ पे ज़्यादा बिकता है। वहाँ क्यों बिकता है? ड्यू टू दिस क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिनके प्रोडक्ट्स आईपीएम कैटेगरी के होते हैं। आईपीएम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सो मिस्टर विठल अग्रवाल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं, फार्मर्स को बोलते हैं कि आपको ये उगाना है, उसमें इतना ही पेस्टिसाइड डलेगा, इतना ही खाद डलेगा, इतना ही वो डलेगा। तो जितना गवर्नमेंट के एफएसआई नॉर्म्स में अलाउ होता है तो उतना ही प्रोडक्ट वहाँ से आता है, तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर। तो वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स में तो उसको आईपीएम कैटेगरी बोला जाता है। इंडिया में कोई भी मसाला कंपनी एज ऑफ नाउ आईपीएम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रही है एक्सेप्ट शान मसाले। तो ये कंपनी के यूएसपी और डिस्टिंग्विश करता है अलग ब्रांड से। मोर डिटेल आपको नमोता अग्रवाल जी बताएंगे इसके बारे में। कंपनी चूंकि खुले टाइप ऑफ मसाले नहीं बेचती है, पैक करके बेचती है, अंडर ब्रांड नेम बेचती है। तो जहां ब्रांड पैक में बेचते हैं, ब्रांड बेचते हैं, तो ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा नेसेसरी टूल हो जाता है किसी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो कंपनी अभी अपनी मार्केटिंग करती थी जब भी इस लेवल पर पहुंची है, पर उस लेवल पे नहीं थी कि नेशनल लेवल पर प्रेजेंस करे। कंपनी ने उस प्लान को भी अपडेट कर रहे हैं और इस आईपीओ के माध्यम से दे विल मार्केट देयर प्रेजेंस थ्रू आउट इंडिया एंड देयर मार्केट देयर ब्रांड। उस ब्रांडिंग के लिए कंपनी ने पीटी जिंटा स्टार को हायर किया है और उनके साथ शूट करके आफ्टर दिस आईपीओ द मार्केटिंग विल किक स्टार्ट। दैट विल डेफिनेटली एनहांस द acceptability of this brand among the greater part of the India। जहाँ मैं बता रहा था कंपनी की प्रेजेंस मेजरली राजस्थान, पंजाब, यूपी के अंदर है क्योंकि वो आसपास के इलाके हैं, बट कंपनी हर जगह और भी बहुत मांग मिल चुकी है। दूसरा, अपनी फर्दर सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर में एमपी के अंदर भी अपना प्रोडक्शन चालू करेगी। इंटरनेशनली सभी जगह होता है। सितंबर तक हमने 1.5 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, सारा का सारा यूएई में करा है, पर फ्यूचर में यूएस और चाइना भी चालू करेंगे। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जयपुर के अंदर है। कंपनी पिछले 3 साल से अपनी कैपेसिटी को हर साल बढ़ाती जा रही है क्योंकि कंपनी की टर्नओवर आप देखेंगे 63 करोड़ था 2023 में, 107 करोड़ हो गया 2024 के अंदर, 125 करोड़ हो गया 2025 के अंदर, और इस साल कंपनी इससे भी आगे मीट कर ले जाने की इच्छा रखती है। अब चूंकि जब टर्नओवर बढ़ता है तो क्वांटिटी भी चाहिए, मसाले ज़्यादा चाहिए, तो कंपनी को अपनी कैपेसिटी एनहेंस करनी पड़ेगी। सो कंपनी इसको रेगुलर बेसिस पे कर भी रही है। 2023 में कैपेसिटी थी जो कंपनी 80-85% यूज कर रही थी, तो कंपनी ने 2024 में कुछ कैपेक्स किया, मेजर कैपेक्स 2025 में करा। 25 का कैपेक्स कंप्लीट किया 29 मार्च 2025 को। तो केवल 2 दिन का कैपेक्स मिला कंपनी को, बाकी तो वो अंडर वर्किंग प्रोग्रेस था। तो जो डेटा आप देख रहे हैं
इसमें आपको यूटिलाइजेशन कम दिखेगा 2025 के अंदर, वो इसीलिए क्योंकि जो एडिशनल कैपेसिटी थी वो यूजेबल हो पाई केवल 2 दिन के लिए, तो पूरा डिनोमिनेटर ऐड होने से आपको प्रोडक्शन कम दिख रहा है। बट इस साल के अंदर कंपनी ऑन ट्रैक है, नई कैपेसिटी से नया बिजनेस करके यहाँ से रेवेन्यू को अच्छा करेंगे और यूटिलाइजेशन फिर वही 85-90% आएगा नई कैपेसिटी का। ये कंपनी के ब्रीफ फाइनेंशियल से केपीआई हम बोलते हैं इसको। कंपनी का जैसे मैंने बिजनेस बताया 67 करोड़ की टर्नओवर थी 23 में, वो बढ़ के 107 हो गई, फिर उससे 125 हो गई। सो तीनों साल से कंपनी ग्रोथ करती जा रही है, सीजन का अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा है, अराउंड 20% ग्रॉस मार्जिन है कंपनी का इस धंधे के अंदर। तो किसी भी ब्रांड के लिए ही हो सकता है, नॉर्मल करेंगे तो ये नहीं हो सकता। जब जीपी मार्जिन अच्छा होता है तो एबिटा भी अपने आप में अच्छा ही रहेगा। कंपनी का 11.5% के आसपास एबिटा है और 6.5% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। सो कंपनी अच्छे मार्जिन को मेंटेन कर रही है, ईयर टू ईयर बेसिस पे अपने मार्जिन को बढ़ा रही है, साथ के साथ अपने टर्नओवर को बढ़ा रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग केपीआई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का एक वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया के अंदर, अराउंड 380-390 डिस्ट्रीब्यूटर्स है कंपनी के पास, और उसके अंदर लिस्ट ऑफ हजारों रिटेलर्स हैं जो कंपनी कर रही है। एंड कंपनी एवरी ईयर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ा रही है और उसको और मजबूत कर रही है, जो कंपनी की प्रेजेंस को इंक्रीज करता है जनरल ट्रेड के अंदर। कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत क्लीन और साफ सुथरी है। कंपनी की नेटवर्थ 30 करोड़ के आसपास है। कंपनी की बोरिंग्स 35 करोड़ की सीसी लिमिट है और 8 करोड़ का टर्म लोन है। इसके अलावा क्रेडिटर्स कुछ खास नहीं है। जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है 26 करोड़ की फिक्स एसेट्स है, 45 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री है एंड 10 करोड़ के आसपास का डेटर्स है। सो फेयरली गुड बैलेंस शीट, वेल डिफाइंड बैलेंस शीट है। इस आईपीओ से कंपनी 40 CR फंड रेज करेगी, दैट विल ऐड टू द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। सो कंपनी की नेटवर्थ हो जाएगी 70 CR, जो कंपनी को एलिजिबल बनाएगी 3 साल में माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि एज पर माइग्रेशन पॉलिसी ऑफ NSE 75 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए होती है माइग्रेशन करने के लिए। कंपनी ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग SME उस लेवल ऑफ नेटवर्थ को मेंटेन करेगी। कंपनी आईपीओ से 10 CR का रैपिड रिडक्शन भी कर रही है। तो आफ्टर दिस आईपीओ कंपनी की बोरिंग्स विल बी अराउंड 34-35 करोड़ एंड नेटवर्थ रहेगी 70 करोड़। तो 0.50 का डेट इक्विटी रेशियो रहेगा, वो बहुत ही परफेक्ट माना जाता है किसी भी फाइनेंस गुड कंपनी के लिए। सो ओवरऑल कंपनी इज डूइंग वेल, अच्छी खासे सेक्टर सनराइज सेक्टर में है जहाँ पे डिमांड एवरीडे बढ़ती जा रही है। वी हैव क्रॉस अराउंड 1.4 बिलियन इन पॉपुलेशन, और इंडिया में घर किचन में मसाला नहीं होता तो खाने की वैल्यू नहीं होती है। तो इस इंडस्ट्री की डिमांड हमेशा रहने वाली है। कंपनी के क्वालिटी IPM प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो सबकी आज डिमांड है कि हमें हेल्दी से फूड खाना है। कंपनी खुद एक डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी इंक्रीज कर ली है, ब्रांड्स में बेच रहे हैं। सो इट ओवरऑल इट सीम्स टू बी अ गुड प्रपोजिशन फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट दिस कंपनी एंड मेक सर्टेन रिटर्न्स। थैंक यू एवरीबॉडी।